Class 11 students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. So class, in the last video we have discussed binary to decimal and decimal to binary number system. So in this video we are going to start one more number system actually, and the name of the another number system is octal number system. So octal number system has a base 8 from 0 to 7. What is the base of this number system is 8. So 8 means it's 2 raised to power 3 is equals to 8. So हमें कितने digit चाहिए to represent octal number system? We need to represent 3 digits to represent octal number system. So in this one we have an unusual odometer for octal number system. So here we have 0 to 10. So this is the binary of all the numbers. So in the next one, let's go to the important and the actual part. So in this one, so here we have the first conversion from decimal number to octal system. That means you have a base 10 और आपको convert करना है उसको octal में. So octal has a base 8 and decimal has a base 10. So in this one, so this is the first category. इसमें first category का question सबसे पहले हम discuss करेंगे. Then come to the next category, that means the real numbers. So in the first number हमारे पास एक question है, convert 395 having base 10 to an octal number. आपको क्या करना है, इस decimal base को octal में change करना है. The simple thing is to LCM with 8. Clear? So let's discuss this one with an example. So this is your 395 8 से आप क्या करोगे, LCM करोगे. सो आफ्टर दिस जब आप 390 को 8 से करते हो तो 49 आपके पास 3 आएगा. अगेन दिस इज एन डेसिमल नंबर, अगेन उसको करोगे. नेक्स्ट यू विल हैव 6 and 1. क्लियर? सो आगे नहीं होगा बस, बिकॉज हमें क्या मिल गया है पूरा. सो दिस नंबर इज इन ऑक्टल फॉर्म. 0 और 7 के बीच में येस 6 एग्जिस्ट करता है. सो स्टॉप हियर. नाउ you will come from this to this. So 613 यहाँ से आप 613 from bottom to top having base 8. Clear? So again one more example is there, 4759. again उसको 8 से करोगे और इस तरह से सबसे पहले 5947 आपके पास रिमाइंडर आएगा. देन अगेन यू हैव टू डिवाइड 8 with 594. Clear? So last में you will have an answer 11227. So this is your answer. So second category of this question is real number. A real number means a number having decimal, a number having point is called real number. So this is an example, 445.37. So this part is the part before the decimal. 445 को हम बोलते हैं integral part, and 37 the digits after decimal is called fractional number. तो इनको अलग अलग करोगे. 445 को आप वैसे ही करोगे जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन परफॉर्म किया है. इट्स 445 को 8 से करोगे, यू विल गेट 55. देन 55 को अगेन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 675. सो 675 आपके पास आ गया इंटीग्रल पार्ट का आंसर. नेक्स्ट कम टू द फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से. सो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.37. सो 0.37 को सबसे पहले 8 से करोगे, यू विल गेट 2.96. तो 2 आप साइड में कर लो,
0.96 को आप फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर दो. नाउ यू विल गेट 7.68. अगेन 7 को साइड में कर लो एंड 0.68 को अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 8. 5.44 यू विल गेट द आंसर. 5 को यहाँ कर दो. अगेन 0.44 को 8 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 3.52. मोस्ट प्रॉबली यहाँ पे सिर्फ 4 और 5 आइट्रेशन के बाद यू विल स्टॉप हियर. वैसे तो 0.52 भी को भी आप 8 से दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर ओनली 4 आइट्रेशंस आर इनफ. बट देर इज़ अ डिफरेंस. आप इंटेग्रल पार्ट को बॉटम टू टॉप लेते हो, आप लोगे 6, 7, 5. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट में आप ऊपर से नीचे आते हो. दैट मीन्स 3, 5, 7, 2 नहीं लोगे आप क्या लोगे? 2, 7, 5, 3. क्लियर? So our next example is again 770.375. Again you have to 770 is an इंटेग्रल पार्ट, तो इंटेग्रल पार्ट को आप ऐसे सॉल्व करोगे एंड 0.375 को आप ऐसे सॉल्व करोगे. अब यहाँ पे देखो, जब आप कर रहे हो तो 3.00 आ रहा है, तो देर इज़ नो नीड टू गो फर्दर. यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है. ओनली 3 यू विल गेट द आंसर. सो 1402.3 is your answer. Clear? So again next one more conversion is there from octal number to decimal. First आपने किया है decimal to octal. Now there is a turn to do octal to decimal. Means octal has a base 8 and you have to convert into a base 10. So this is your example. डेसिमल में कर रहे हो, दैट मीन्स डेसिमल अगर होता है तो जस्ट कीप इन योर माइंड, आप हमेशा ऐसे करते हो, पावर्स के साथ वर्क करोगे. सो आपका पावर यहाँ पे क्या है? 8, 0, ये आपको आता है. सो लेट्स डू इट वन मोर टाइम. सो एग्जाम्पल इज 4105. सो 4105 इज योर example. So 8 has a power 1, 8 has a power 2, 8 has a power 3. Just perform it. 8 की power 0, that means answer is 1. So 1 यहाँ से आया और ये 5, दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई करोगे. ओके, मल्टीप्लाई. सो यहाँ से आंसर आपके पास क्या आया? 5. अगेन 8 has a power 1, answer is 8. So 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0. 8 has a power 2, 8 into 8, 64. 64 into 1, 64. 8 has a power 3. 8 has a power 3, 8 into 8 into 8. That means 64 into 8, 512. So 512 को जब आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन यू विल गेट 2048. तो इसको जब आप प्लस करोगे, यू विल गेट 2117 having base 10. Clear? So there is one more example, 32010. It is in the form of decimal, octal. You have to convert into a decimal. So next is how to perform octal to decimal on real numbers. So real numbers, integral part, fractional part. So fractional part को आप कैसे कर रहे हो? इंटेग्रल पार्ट को आप LCM करोगे. क्लियर? सॉरी, LCM नहीं, आप पावर करोगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल नंबर सिस्टम. तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है. इसको पहले सेम वैसे आपने यहाँ तक परफॉर्म किया, 8 की पावर 0, देन यू हैव टू यहाँ पे 1 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन 8 की पावर 8, इसको 1 से मल्टीप्लाई, 64 इंटू 4. सो यू विल गेट आंसर 2825 फ्रॉम दिस पार्ट, 2825 फ्रॉम दिस पार्ट. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट में आप कैसे करोगे? सेम, इट्स सिंपल. यहाँ पे 8 की पावर 0 नहीं लेते. ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम इंटेग्रल की बात करते हैं तो वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ आप लेफ्ट टू राइट जाओगे. क्लियर?
सो 8 की पावर 0 नहीं है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं 8 की पावर -1. दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इन द मैथ्स, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इंटू 3, प्लस 8 की पावर -2. दैट मीन्स 8 इंटू 8 64, 1 इंटू 64 अपॉन इंटू 5. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट मीन्स आपके पास आंसर आ रहा है 0.1562. क्लियर? सो अगेन one more example is there. So next one more conversion. It's conversion from octal to binary. It's very important, at the same time it is very easier one also. बहुत easy है और पेपर में आती है. Clear? So in this one firstly we have a table here. So table में हमने starting में वीडियो में बात की थी, octal has a base 8. सो 8 कैसे आता है, 2 raised to power 3 equals to 8. And in octal number we have to represent how many digits we need to represent, 3 digit. तो 3 digit आप represent कर रहे हो, that means 3 यहाँ पे देखो 0 है तो 0 को आप कैसे represent कर रहे हो, with 3 0. 1 है तो 0 0 1. So this is how you can represent octal number system. सो एग्जाम्पल है हमारे पास 312. सो हैज़ अ बेस 8 और आपको इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में. तो लेट्स हैव 312. सो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं 312. तो आपको क्या करना है, आपको 3 रिप्रेजेंट करने हैं नंबर्स. सो सबसे पहले आप 2 की बाइनरी लोगे. व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ 2? सो 2 को ऐसे, तो 2 की बाइनरी है 1 and 0. क्योंकि आप जब 2 की बाइनरी है तो 2 को जब करोगे आप 2 1 2, सो 0 1 0 1 0. तो क्या है इसकी 1 0. क्लियर? 1 की बाइनरी कितनी है, 1 की बाइनरी है 0 1 0 1. एंड 3 की बाइनरी कितनी है आपके पास 3. 2 से जब आप डिवाइड कर रहे हो इस चीज़ को 2 1 2, दैट मीन्स 1 and 1. सो 1 1. बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर, आप 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमें ऑक्टल में करने हैं 3 डिजिट रिप्रेजेंट. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? अब सोल्यूशन ये है कि आप सबके आगे 0 लगा दो. 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर. ठीक है, तो ये आपका बन गया ऑक्टल नंबर सिस्टम. अब आप देखो आपका आंसर मैच कर रहा है. सो आंसर इज 0 1 0. पीछे से स्टार्ट हो जाओ, 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे 1 1 0 1 1 0. तो ये आपका आंसर हो गया. क्लियर? सो इट इज़ द वेरी इजियर वन क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल. तो 704 है एग्जाम्पल नेक्स्ट. तो 4 की बाइनरी सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद 0 की एंड 7 और उसको कंबाइन कर दो. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, तो रियल नंबर्स हैं आपके पास, तो रियल नंबर्स की भी वैसे ही करनी है, कोई चेंज नहीं है इसमें. सिर्फ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज यू हैव टू राइट द बाइनरीज ऑफ ऑल द नंबर्स. क्लियर? सो नेक्स्ट कन्वर्जन इज binary to octal. Binary to octal. So let's move to the example first. So अब इसमें हमें क्या करना है, conversion from binary to octal. मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा 0 और 1 की फॉर्म में और आपको उसको किस में चेंज करना है, octal. सिंपल है, octal 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. तो बस 3 3 का कॉम्बिनेशन बना लो. पीछे से स्टार्ट हो गए. सबसे पहले इनका कॉम्बिनेशन 3 3 का कॉम्बिनेशन बना. पर देयर इज़ अ प्रॉब्लम, 1 यहाँ पे अकेला रह गया. नो प्रॉब्लम, इसके आगे आप 0 लगा दो. तो ये आपका क्या हो गया, बन गया. क्लियर? यहाँ पे भी आप 3 3 के क्या बनाओ, कॉम्बिनेशंस. ओके, नो प्रॉब्लम. 11 यहाँ पे 0 आगे लगाओ, कॉम्बिनेशन. क्लियर? So next is conversion from binary to octal in real numbers.
तो रियल नंबर्स में भी सेम है. तो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस टिल नाउ 3 number systems actually. Number 1 is हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी किया. उसके बाद हमने बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल किया, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल. तो हमने ये सारे कन्वर्जन कंप्लीट कर दिए. सो लेट्स कम टू द लास्ट नंबर सिस्टम इज योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. So hexadecimal number has a base 16. And how many numbers are there? 0 to 15. Clear है? 0 to 15 है इसमें. ठीक है. अब कैसे है 0 to 15? One more thing कि 0 to 9 तो आप वैसे ही रिप्रेजेंट कर देते हो. 0 to 9 क्लियर. 0 to 9 में प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे ही रिप्रेजेंट कर देते हो. लेकिन आप जब 10 आ जाता है आपके पास, बिकॉज 15 तक है, 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सो देयर इज एन क्राइटेरिया है. सो देयर इज वन मोर क्राइटेरिया. आप 10 को ए से रिप्रेजेंट करोगे, 11 को बी से, क्लियर, 12 सी, 13 डी, 14 ई एंड 15 ई. क्लियर. So here we have a odometer. यहाँ पे one more thing, 16 कैसे आता है आपके पास? क्योंकि आप 4 डिजिट रिप्रेजेंट करते हो. 2 raised to power 4 equals to 16. That means 2 into 2 into 2 into 2. So 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16. So that is why 2 raised to power 4 equals to 16. तो यहाँ पे आपको कितने नंबर्स रिप्रेजेंट करने होते हैं? 4 नंबर्स, 4 डिजिट्स. क्लियर. सो फर्स्ट कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल. ठीक है. सबसे पहले कन्वर्जन है आपके पास, आपको डेसिमल को हेक्सा में चेंज करना है. दैट मीन डेसिमल हैज़ अ पावर 10 और उसको आपको 16 में चेंज करना है. So here we have an example 2699. 2699 10 के फॉर्म में है. दैट मीन्स इन डेसिमल फॉर्म आपको क्या करना है? हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे, सिर्फ आपको 16 से एलसीएम करना है. जैसे आप 16 से एलसीएम करोगे 2699. सो इन दिस 2699 16 से करो आप. ठीक है. 16 सो यहाँ पे जब आप एलसीएम करोगे तो 168 आएगा, 11 आपके पास, देन 16, 10 आएगा आपके पास, 8. क्लियर. तो 10 तो ऑलरेडी इन 0 to 15 के अंदर आता है, 10 तो स्टॉप है. तो 11 को आप बी से रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. सो योर आंसर इज 10. 10 इज रिप्रेजेंट विद ए. सो आंसर इज 8AB 16. Clear. 8AB 16 answer is here. So next one more example. So next conversion is hexa to decimal. Hexa को decimal में change करना है. तो I have already told you earlier कि जब आप decimal convert करते हो ना, किसी भी फॉर्म को decimal में change करते हो, तो you have to use powers. ठीक है. सो 7CE. सो सबसे पहला टास्क है, आप 7C मीन्स 12, E मीन्स 14. सो 16 की पावर 0, 16 हैज़ अ पावर 1, 16 हैज़ अ पावर 2. क्लियर. 16 की पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 14, यहाँ पे क्या आ गया? 14. तो 16 हैज़ अ पावर 1, आंसर इज 16. 16 और 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे, अगेन 7, 16 इंटू 16 246 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल गेट दीज आंसर एंड यू हैव टू सम देम. अगेन ABC is a question. So next conversion is conversion from hexa to decimal of real numbers. Last on page number 16. अब आपको क्या करना है? आपको हेक्सा को डेसिमल में रियल नंबर के फॉर्म में चेंज करना है. तो इन दिस वी हैव सेम इंटेग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट. इंटेग्रल पार्ट इज हियर. इंटेग्रल पार्ट को आप वैसे ही करोगे.
एंड फ्रैक्शनल पार्ट को भी आप वैसे ही करोगे जैसे आपने पहले ऑक्टल के केस में किया था. सो 16 हैज़ अ पावर्स 0 तो 1 आंसर, 1 को 11 से मल्टी, क्योंकि b है, b मीन्स 11. अगेन यहाँ पे 4 को देर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट इट, तो यहाँ पे 16 हैज़ अ पावर 1, 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई. यहाँ पे भी सेम. नाउ कम टू द फ्रैक्शनल पार्ट, तो कैसे करोगे? 16 हैज़ अ पावर -1, 16 हैज़ अ पावर -2. सो नेक्स्ट कन्वर्जन इज हेक्सा टू बाइनरी. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट वन. सिंपल. अब आपको इसमें ऑक्टल में आपने क्या किया था? यू हैव टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिजिट्स, एंड इसमें आप क्या करोगे? यू हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिजिट्स इन हेक्सा टू बाइनरी. सो here we have a binary of all the numbers 0 to 7 यहाँ पे और 8 to 15 यहाँ पे. क्लियर? सो एग्जाम्पल है आपके पास ABC 16 टू बाइनरी. बस C मीन्स 12 की बाइनरी कितनी है? 1100. सिंपल 4 डिजिट्स रिप्रेजेंट कर दो. B मीन्स 11 हैज़ अ बाइनरी 1011 and A has a binary 1010. Simple, you have to write it. Clear? So D 97. D को convert करो 13. 9 is intact here. 7. So D को आप पहले convert कर दो. Sorry, यहाँ से चलोगे 7 को पहले, then 9, then D. So next conversion is real numbers. तो real numbers की भी same रहेगी. So next is conversion from binary to hexadecimal. अब आपके पास बाइनरी है, यू हैव टू मेक 4 डिजिट्स कॉम्बिनेशन. क्लियर? सो है वी हैव द एग्जाम्पल. यहाँ पे आपके पास है. सो है वी हैव द डिजिट्स. सबसे पहले पीछे से चलोगे 4 के कॉम्बिनेशंस. ओके, 4 डिजिट्स एंड ये 3 रह गया, नो प्रॉब्लम. एक 0 आगे लगा दी तो ये आपका कन्वर्जन हो गया. क्लियर? सो इन द नेक्स्ट वन, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्सा. बाइनरी है, हेक्सा में चेंज करना है. रियल नंबर्स में भी वैसे ही करोगे. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सम मिसलेनियस एग्जांपल्स. ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर सिस्टम. तो ये हमने किया है डेसिमल टू बाइनरी. यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम हियर. सो नेक्स्ट, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल. सो क्लास, so here we have finished number system, all the conversions of number system. So in the next Zoom class or in your video tutorials we will move further. So till then, take care, bye, and have a good day.